دہشت گردی کا خاتمہ، معاشی استحکام اور عوامی خوشحالی حکومت کی اولین ترجیحات۔ اتحاد اور یکجہتی سے ترقی کی منازل طے کرنی ہیں۔ احتجاج کی آڑ میں اسلام آباد پر لشکر کشی کی گئی۔ شرپسند عناصر کا مقصد افراتفری پھیلانا اور معاشی کامیابیوں کے عمل کو سبوتاژ کرنا تھا۔ معاشی استحکام اور خوشحالی کے عمل کو ڈیریل کرنے کی مذموم کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ دور حاضر میں قومی سلامتی کا تصور تبدیل ہو چکا۔ ترقی اور سلامتی معیشت سے منسلک ہے۔ قوموں کی تقدیر پھونکوں سے نہیں بدلتی۔ اقتصادی خود انحصاری کے طویل اور کٹھن سفر کے لیے انتھک کوششوں کی ضرورت ہے۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، نجی شعبے کو سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ اربوں روپے خسارے کے شکار سرکاری اداروں کی نجکاری کا عمل مکمل کریں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ بلوائیوں اور شرپسندوں سے نمٹنے کے لیے خصوصی فورس کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے فورس کو بین الاقوامی طرز پر پیشہ ورانہ تربیت اور وسائل سے لیس کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں انتشار اور اشتعال پھیلانے والے عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ آئندہ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جامع لائحہ عمل مرتب کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی کے مہرے بکھرنے لگے، اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ بیرسٹر گوہر چیئرمین کے عہدے سے فارغ، سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی، بشرا بی بی کی ہٹ درمی سے سنجیدہ قیادت نالاں۔ من مانے فیصلوں نے احتجاج کو پرتشدد بنایا۔ مزید رہنماؤں کی جانب سے بھی پارٹی ذمہ داریوں سے علیحدگی کے اعلانات جلد متوقع۔ احتجاج کی آڑ میں تحریک انصاف کی اسلام آباد میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کی سازش بے نقاب۔ پی ٹی آئی والوں نے پیسے دے کر دھرنے پر بلایا، توڑ پھوڑ اور آگ لگانے کا کہا۔ دھرنے کے مقام پر گاڑیوں میں پہلے سے پتھر اور پیٹرول بم موجود تھے۔ سرکاری املاک کو بھی تباہ کرنے کی ہدایت کی۔ پولیس آئی تو قائدین بھاگ گئے اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ پی ٹی آئی کے گرفتار شرپسندوں کے ہوش ربا انکشافات۔ پی ٹی آئی کے شرپسندوں سے ملک کے محافظ بھی محفوظ نہیں رہے۔ شرپسندوں نے احتجاج کی آڑ میں رینجرز اہلکاروں پر دھاوا بول دیا۔ شرپسندوں نے ہم پر باقاعدہ حملہ کیا۔ 26 نمبر چنگی پر ڈیوٹی اہلکاروں پر مظاہرین نے تشدد کیا۔ ہمارے 3 ساتھی شہید اور 3 شدید زخمی ہوئے۔ مظاہرین ہمارے ہیلمٹ اور شیٹ بھی چھین لے گئے۔ پی ٹی آئی مظاہرین کے تشدد سے متاثرہ پنجاب رینجرز کے جوانوں کے انکشافات۔ 29 نومبر فلسطینی عوام سے عالمی یکجہتی کا دن۔ آزادی، وقار اور انصاف کی جدوجہد میں فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت پورے خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ عالمی برادری فلسطینی عوام کی نسل کشی روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے۔ صدر آصف علی زرداری۔ غزہ میں جاری اسرائیلی دہشت گردی سے اب تک 42,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے بھرپور حمایت کا اعادہ۔ عالمی برادری اسرائیل کی جانب سے بے گناہ فلسطینیوں کے مسلسل قتل عام اور نسل کشی کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ غزہ لہو لہو، اسرائیلی فوج کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری، متعدد فلسطینی شہید۔ پابندیوں سے انسانی بحران، قحط کی صورتحال کا سامنا۔ سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بندی سے متعلق اپنی قرارداد پر عمل درآمد کرائے۔ صدر محمود عباس کا مطالبہ۔ یورپی ملک اسرائیلی وزیر اعظم کی گرفتاری سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ سربراہ EU فارن پالیسی جوزف بوریل۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اقتصادی تعاون تنظیم کے وزراء کی کونسل کے 28ویں اجلاس میں شرکت کے لیے 2 دسمبر کو ایران کا سرکاری دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم ECO چارٹر کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ روڈ اور ریل راہداریوں کی ترقی کے ذریعے ECO خطے میں زیادہ سے زیادہ رابطے کے امکانات کو اجاگر کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत जिनाह मेडिकल कम्प्लेक्स मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। मेडिकल कम्प्लेक्स मनसूबे की मंजूरी। जिनाह मेडिकल रिसर्च सेंटर जदीद तिब्बी तालीम और तहकीक की सहूलियात से आरास्ता बेहतरीन इदारा होगा। इदारे के क़याम से सेहत और तहकीक में बेहतरीन मयारात कायम किए जाएंगे। एहसन इकबाल। पंजाब में अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए जदीद मशीनरी खरीदने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे फ्लडिंग प्लान तलब। सैलाबी नालों की बरवक्त सफाई और बहाली यकीनी बनाने की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब। हुकूमत बलूचिस्तान ख़ातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म। बलूचिस्तान इंतज़ामिया के बेशतर ओहदों पर ख़ातीन फाइज। पाकिस्तान के खिलाफ कारफरमा हर मजमून साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं। हुकूमत बलूचिस्तान कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तालिबात को सिक्योरिटीज़ फराहम करने का वादा जल्द पूरा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और सर्विसेज एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए SIFC की नुमाया किरदार। रवां साल की पहली तिमाही में खिदमात की बरामदात 6% इजाफे से 1 अरब 91 करोड़ डॉलर रहीं। तरक्की में बढ़ोतरी की बुनियादी वजह शोबा IT मसनूआत में सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्स, डिजिटल मार्केटिंग और AI शामिल। फ्रीलांसर्स के लिए बैंक अकाउंट्स की आसानी और रकम बरकरार रखने के लिए एक नया फ्रीलांसिंग फ्रेमवर्क भी मुतारिफ। मोदी का अक़लियती जमातों के साथ जालिमाना रवैया। मणिपुर में फसादात, कत्ल गारत और झड़पें। क्योंकि ज़ू कबाइल पर जुल्म की इंतहा। हालात इंतहाई तशवीशनाक। जैरीबाम में फ़ौजी एक्ट के तहत नया कानून नाफिज। फ़ौज की तैनाती के बावजूद खाना जंगी की सूरत हाल बरकरार। ऑपरेशन सिर्फ अवाम की आवाज़ दबाने की साजिश। फसादात के दौरान 258 शहरी हलाक। 50,000 से जायद बेघर हो चुके। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में भी गरज चमक के साथ चंद मकामात पर हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद। ICC बोर्ड का वर्चुअल इजलास आज दुबई में होगा। मीटिंग में तमाम बोर्ड मेंबरान शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही हाइब्रिड मॉडल का फॉर्मूला मुस्तरद कर चुका है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी-मार्च में पाकिस्तान की मेज़बानी में खेली जाएगी। इवेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेगा इवेंट में एजाज का दिफा करेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच इतवार को बुलवायों में खेला जाएगा। दोनों टीमों के माबैन 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम रही। पाकिस्तान जिम्बाब्वे व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और UEFA यूरोपा लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। स्पेनिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नॉर्वेजियन फुटबॉल क्लब बोडो ग्लिम्ट को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। रियल सोसिएडाड की डच क्लब एजिक्स के खिलाफ 2 गोल से कामयाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रमेसा कुरैशी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने दहशत गर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया है।
पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें तरक्की के मौजूदा अमल को तबाह करना चाहती हैं। वज़ीर आज़म के NDU से खिताब की तफसील से आगाह कर रहे हैं नवीद अजहर इस रिपोर्ट में। 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम ने भारी कीमत अदा की। इस जंग में 80,000 लोग शहीद और 130 अरब का मुआशी नुकसान हुआ। On a daily basis, there is a sad incident in south of KP, in Balochistan. Nefarious elements are driving this nefarious scheme over there through active support of Pakistan's enemies. What happened in Parachanar? Innocent Pakistanis were butchered by both sides. And as if this was not enough, there was Lashkar Kashi on Islamabad. वजीर आज़म ने कहा कि एक सियासी जमात की तरफ से एहतजाज की आड़ में हजारों अफराद ने असला लेकर अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया। ये अनासर खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हासिल की गई कामयाबियों को सबूताज करना चाहते हैं। मुल्क के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं और फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड, उनका खात्मा अजहद ज़रूरी है। वो वक्त आएगा ज़रूर कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह हम तरक्की के रास्ते पर गामजन होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मिलकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाना है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद से ही तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी भी माशरे और कौम की सलामती माशी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। कौमों की तकदीरें फूंकों से नहीं बल्कि जुहदे मुसलसल से बदलती हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद शाहिद अपनी इस रिपोर्ट में। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की 26वीं सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरुका से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माशी खुद इनसारी की मंजिल के लिए इंतहाई जामा मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। जून 2023 में माशी सूरत हाल इंतहाई नाजुक थी। हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे और सख्त फैसलों से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। Let this be the last time we would ever engage with IMF. It requires a very comprehensive plan. I'm inshallah going to unroll it in the next few days. This will be a plan called homegrown plan. I will do my best along with my colleagues to implement this plan in Lytton spirit. वज़ीर आज़म ने कहा कि अफरा तफरी और दरनों की सियासत ना होती तो माशी खुद निसारी का संग मील पहले हासिल कर लिया जाता। माशी खुद निसारी के लिए तवील सफ़र, सख्त मेहनत और अंत तक कोशिशें दरकार हैं। If we are economically strong, we have our exports growing, our industrial base expanding, productive jobs being provided, bureaucracy efficient and agile, economic security will automatically strengthen our critical security. Together we have to protect Pakistan's future. Together we have to march forward, and this can only happen through यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन। शुरका के साथ सवाल और जवाब की नशिस्त में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का काम सरमायाकारी के लिए मौजूद माहौल की फराहमी को यकीनी बनाना है ताकि निजी शोबा इक़्तिसादी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है टू फैसिलिटेट, टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट। बिल्कुल उसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें शफाफ तरीके से। मैं इसमें बता दूं कि हेयर पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड आर इंस्टीट्यूशन आर ऑल ऑन वन पेज, एंड मैं और जनरल आसिफ मुनीर पूरी तरह हम वी आर एब्सोल्युटली अलाइन्ड ऑन दिस इशू। तकरीब से खिताब करते हुए इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, रिसर्च एंड एनालिसिस के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल रज़ा एजाद ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप का इनेकाद 2003 से कामयाबी से जारी है, जिसमें 50% पार्लियामेंटेरियंस जबकि 50% एकेडेमिया, कानून, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और दूसरे शोबों से वाबस्ता अफराद शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में कौमी सलामती की उमूर के अलावा मईशत, तालीम, गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी समेत कौमी और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाता है। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बलवाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम की जाए। फोर्स को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर पेशेवराना तरबियत और ज़रूरी साजो सामान से लैस किया जाए। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता दिनों सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले मुसल्लह अफराद की निशानदही करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत की है।
वज़ीर आज़म ने आइंदा ऐसी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए एक जामे लाहेमल मुरतब करने की हिदायत करते हुए कहा कि आवाम में इश्तियाल, बेयकीनी और इंतशार फैलाने वाले अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से जायज़ा इजलास में गुज़श्ता दिनों मुल्क में धरनों की सूरत में एहतजाज करने वालों की जानिब से सरकारी अमलाक और पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों पर हमले पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने नाम नहाद पुरअमन धरने के मुसल्लह अफराद को इंतशार फैलाने से रोकने में बर्दाश्त का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई करते हुए इस हुकूमत हवाले से इस्तगासे के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये कैसे इनकलाबी हैं जो मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में तारीख़ी करप्शन और अपनी हुकूमत बचाने के लिए इसको दिवालिया करने वालों की मज़मूम साजिशें रचाने वाले कानून की गिरफ्त में आए हैं। वज़ीर आज़म ने इंतशारी टोले की लश्कर कशी के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले अहलकारों को खराज अक़ीदत भी पेश किया। PTI के गिरफ्तार शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। एहतजाज में शरीक शरपसंद का कहना था कि वो 10वीं जमात का तालिब इल्म है, जबकि उसके वालिद मजदूर हैं। PTI वालों ने पैसों के बहाने धरने में जाकर तोड़ फोड़ और आग लगाने का कहा। PTI वाले हमें अकेला छोड़कर खुद भाग गए। 10th क्लास स्टूडेंट है माँ प्लार मजदूरी का भी माँ तो PTI वेले ता मुझे पैसे इधर को मोबाइल बदर ताखलो मुशर लाड़ से दर नेता अलतबा शयान था और वर्काओ तीजे पतरा बोलो कहानी बोलो मुझे रावस्तु से दलता परेशलो दो फला पटशोल मुझे परेशलो उस मुझे PTI वाले ने मेरे साथ रब्ता किया। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। उसने मुझे कहा कि हम आपको 4 या 5 हज़ार रुपये देंगे और आप हमारे साथ चले जाए और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके गाड़ियों को मार दे, आग जलाओ करे और मतलब डंडों पे लोग मार दे। तो इसे मैं जब उधर चला गया तो मैंने मतलब डंडा जब उठाया तो वहाँ पे आग उसने जलाया, मतलब गाड़ियों को मार दिया, मतलब लोगों को मार दिया। तो हम जो है ना वहाँ पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और वो भाग गए। अभी उसने हमें कुछ भी नहीं, ना पैसे दिए, कुछ भी नहीं। यहाँ आने का मकसद ये हुआ कि मेरे दोस्त ने कहा, मुझे फ़ोन करके बताया कि आप आइए यहाँ पर और PTI के धरने में आपके लिए पैसे भी मिलते हैं और आपके यहाँ चक्कर भी होगा, घूमो फिरो भी। तो मैं जब यहाँ पर उसने पैसे भी भेजे तो मैं जब यहाँ पर आया तो धरने के लिए मैं वहाँ पर गया तो मैंने गाड़ियों के अंदर क्या देखा, बड़ा बड़ा पत्थर पड़े हुए थे और पेट्रोल बम बना रहे थे लोग। और इसके बाद असर कोई मगरिब के बाद वहाँ पर डंडे मारना शुरू किया गाड़ियों के ऊपर, फिर पेट्रोल बम के से वो फेंकना शुरू किया। उसके अलावा हमारे जो कैदीन थे उनने कारकुनों को हिदायत दी इनके ऊपर सरकारी अमलात के ऊपर चल जाओ और गाड़ियों के ऊपर चल जाओ। तो उन्होंने गाड़ियों पर पत्थर भी फेंका और पेट्रोल बम भी फेंका और जो भी सरकारी गाड़ी आई तो उनके ऊपर वो पथराव कर रहे थे और वो चिलिंग भी कर रहे थे। तो उसके बाद मैं वहाँ से जब वो कैदीन भाग गए तो मुझे वहाँ से मैं भी निकला, रास्ते में मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा है। मेरा PTI वाला लीडर मेरे साथ बात किया, हमारा साथ धरने में जाओ। मैं फिर इधर आया, फिर गाड़ी में पत्थर पड़ा था और डंडा भी पड़ा था। फिर वो पुलिस भी आ गया, फिर वो PTI वाला लीडर भाग गया, फिर पुलिस मेरे को पकड़ गया। और PTI मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी हो जाने वाले पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकशाफात भी सामने आ गए हैं। PTI के शरपसंदों से मुल्क के मुहाफिज भी महफूज नहीं रहे। शरपसंदों ने एहतजाज की आड़ में रेंजर्स एहलकारों पर धावा बोल दिया। पंजाब रेंजर्स के एहलकारों के मुताबिक शरपसंदों ने उन पर 26 नंबर चुंगी समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। शरपसंदों की गाड़ियों की जद में आकर 3 साथी शहीद जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। 26 नंबर ड्यूटी पे था, वहाँ पे मुजाहिरीन आए और उन्होंने हम पर तशद्दुद किया। हमें जो हमारे ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज किया और पत्थर वगैरह उनके पास थे, वो मार रहे थे। उन्होंने मुझसे शीट और हेलमेट वगैरह छीन लिया और डंडे के साथ उन्होंने मेरे नाक पे मारी और मेरे नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। और उसके बाद मेरी टांग पे भी उन्होंने मारी, वो टांग भी फ्रैक्चर है।
और मेरी कमर पे भी उन्होंने मारी और मेरी कमर जो है ना काफ़ी जो है ना वो दर्द वगैरह हो रहा है। 26 नंबर पे हम ड्यूटी पे तैनात थे। शर्पसंदों की एक गाड़ी आई, हम 6 साथी खड़े हुए थे, उन्होंने कुचलने की कोशिश की। हम 3 साथी मेरे शहीद हो गए, 3 हम शदीद ज़ख्मी हो गए। मुज़ाहिरीन आए हैं, उन्होंने हम पर हमला किया है, पत्थर और फायर शुरू किया है और मैंने हेलमेट और शील्ड उन्होंने मुझसे छीन लिए और डंडे से मुझको मारा। मेरी बाजू टांग ये इधर चोट लगा के छोड़ गए, मैं बेहोश हो गया था। हम 26 नंबर पे ड्यूटी पे तैनात थे और जो पीटीआई का काफ़ी ज़्यादा तादाद में क्राउड आया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पत्थर बरसाए और हमारे पास एंटी राइट होती है जो सिर्फ पत्थरों के बचाव के लिए होती है। उस क्राउड में से किसी बंदे ने फायर किया है और वो यहाँ से हमारे साथी के सर को यहाँ से फायर लगाया, हेलमेट में फायर लगाया तो हमारे साथी को सर में फायर लग गया और दूसरी तरफ से फायर निकला है उसका। अभी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हालत में है, आईसीयू में दाखिल है वो, तो वेंटिलेटर पे है। इंतशारी पार्टी मजीद अंदरूनी इंतशार का शिकार। 24 नवंबर के एहतजाज को तशद्दुद में तब्दील करने में नाकामी के बाद पीटीआई की क़यादत एक दूसरे से दस्तों गिरबां होने लगी। फाइनल कॉल वाले दिन तहरीक इंसाफ के मरकजी लीडरों के मंजर से गायब होने पर कारकुन बिफर गए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गोहर चेयरमैन के ओहदे से हटा दिए गए। सलमान अकरम राजा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। पीटीआई की सीनियर क़यादत बुशरा बीबी की हठधर्मी से सख्त नाला दिखाई दे रही है। बुशरा बीबी के मनमाने फैसलों ने एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाया और फिर राह फरार इख्तियार करने पर कारकुन आग बगोला हो गए। बुशरा बीबी की हठधर्मी के बायस पार्टी क़यादत ने खुद को एहतजाज से दूर रखा और सिवाय वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर के कोई भी एहतजाज में शामिल नहीं हुआ। बुशरा बीबी के जारहाना रवैये ने पार्टी की क़यादत को बेबस कर दिया था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं कि पाकिस्तान फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करता है। आलमी बरादरी इसराइल को जहरियत और नस्लकुशी पर जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान लबनान में हाल ही में होने वाली जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम करता है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 से 3 दिसंबर को ईरान का दौरा करेंगे, जहां वो अपने खिताब में ECO चार्टर के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा करेंगे। रोड और रेल राहदारियों की तरक्की के ज़रिए ECO खित्ते में ज़्यादा से ज़्यादा राब्ते के इम्कानात को भी उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ECO के चार्टर पर मजबूती से पुरअज़्म है, जिसका मकसद मवासलात, तिजारत, सकाफ़त और राबतों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए मुअस्सर इलाक़ाई ताउन को फ़रोग़ देना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म ECO क्लीन एनर्जी सेंटर के चार्टर पर दस्तखत करेंगे और मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी पायदार अमन के लिए फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नागुज़ीर करार दिया था। सलामती काउंसिल की करारदाद के बावजूद फ़लस्तीन में इजरायली बर्बरियत जारी है। गजा में अब तक 44,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 50% से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इजरायली फोर्सेस ने गजा में हज़ारों टन धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया, जिसके बायस 1.5 लाख घरों को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतादिद बार गजा में जारी मज़ालिम पर बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ उठाई और गजा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा भी किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी कई मौक़े पर मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई और कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी क़ौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। आलमी बरादरी को इस दिन की मुनासबत से इजरायली मज़ालिम का नोटिस लेना चाहिए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादत के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के नाक़ाबिल तनसीख हक़ के खुद इरादत की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। आज़ादी, वक़ार और इंसाफ के लिए फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ जिद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं।
عالمی برادری فلسطینی عوام کی نسل کشی روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے۔ صدر مملکت نے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان ان جارحانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کی نسل کشی روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اس سلسلے میں اسرائیل اور اس کی قیادت کے احتساب کے لیے تمام اقدامات کا خیر مقدم اور حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے عالمی دن کے موقع پر مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے پاکستانی عوام اور حکومت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے لیے بلا روک ٹوک انسانی امداد کو یقینی بنانے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ تاریخ کے گھناؤنے ترین مظالم ڈھاتے ہوئے اسرائیل اب تک ہزاروں معصوم فلسطینی مردوں، خواتین اور بچوں کا قتل عام کر چکا ہے۔ پاکستان عالمی برادری سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فلسطین میں اسرائیل کے مظالم کو فوری روکنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرے۔ شہریوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں کو روکا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے فلسطینی عوام کی جائز جدوجہد کی پرعزم طریقے سے حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا منصفانہ اور دیرپا حل چاہتا ہے۔ غاصب اسرائیلی فورسز کے غزہ کے مسلمانوں پر وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں ایک بچے سمیت 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح میں نصیرات پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 9 افراد شہید ہو گئے۔ فلسطینی خبررساں ادارے وفاق کے مطابق شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں میں ایک شخص شہید ہو گیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شمالی قصبے بیت لاہیا میں گھروں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 44,300 سے زائد، جبکہ 1,05,000 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ میں شدید بارش سے خیموں میں رہائش پذیر بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ صہیونی فوج کی جانب سے شمالی غزہ کا محاصرہ جاری ہے، جس سے علاقے میں انتہائی گھمبیر صورتحال کا سامنا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی لبنان میں اشتعال انگیزی جاری۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد جنوبی علاقوں میں شہری اپنے تباہ شدہ گھروں کو واپس لوٹنے لگے، تاہم اسرائیل کی اشتعال انگیزی جاری ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے جنوبی لبنان میں کرفیو نافذ کر دیا۔ خیام قصبے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 صحافی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں کو جنوبی لبنان میں خالی کرائے گئے علاقوں میں واپسی سے روک دیا ہے۔ لبنانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فورسز نے 6 سرحدی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ 1 برس کے دوران لبنان پر اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 3,800 سے زائد افراد شہید، 15,900 زخمی ہو چکے، جبکہ 12 لاکھ سے زائد لبنانی شہری بے گھر ہوئے۔ قومی خبروں کا رخ کریں گے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کی زیر صدارت جناح میڈیکل کمپلیکس منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں منصوبے کے جامع حکمت عملی پر غور کیا گیا اور میڈیکل کمپلیکس منصوبے کی منظوری دی گئی۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ فروری 2025 تک پروجیکٹ کے ڈیزائن کو حتمی شکل دے گا۔ احسن اقبال نے جدید طبی تحقیق اور صحت عامہ کی طرز پر منصوبے کا نام جناح میڈیکل ریسرچ سینٹر رکھنے کی تجویز دی۔ انہوں نے جدید اور اعلیٰ معیار کی تعمیر کو یقینی بنانے کے لیے اس میں گرین ٹیکنالوجیز کے استعمال کے ساتھ ساتھ روایتی طرز تعمیر اپنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناح میڈیکل ریسرچ سینٹر جدید طبی تعلیم اور تحقیق کی سہولیات سے آراستہ بہترین ادارہ ہوگا۔ اس ادارے کے قیام سے صحت اور تحقیق میں بہترین معیارات قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اربن فلڈنگ، دریائی سیلاب اور رود کوہیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لینے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے اربن فلڈنگ روکنے کے لیے مشینری خریدنے کی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی تکالیف کے پیش نظر سیوریج سسٹم کی بحالی اور بہتری کی ترجیحات کا تعین کیا جائے۔ انہوں نے موٹر ویز، ہائی ویز اور ریلوے ٹریک کے نیچے سیلابی راستوں کی صفائی کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں سڑکوں سے بارش کے پانی کا نکاس یقینی بنانے کے لیے گرین بیلٹ کا لیول نیچے کرنے کی منظوری دی گئی۔ مریم نواز نے ہدایت کی کہ سیلابی نالوں کی بروقت صفائی اور بحالی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ فلڈنگ کے سدباب کے لیے قوانین کے نفاذ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں اربن فلڈنگ سے متاثرہ شہروں میں سٹوریج ٹینک بنانے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا۔
और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों को रियासत से दूर करने और मसनूई जहानत के जरिए उनकी जहन साजी की कोशिश की जा रही है, जिसे हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोयटा कैंट की तालिबात को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की तकरीब से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा कि हुकूमत सूबे की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम कर रही है ताकि वो भी तामीर व तरक्की में अपना किरदार अहसन तरीके से सर अंजाम दे सकें। उनका कहना था कि पिंक सिक्योरिटीज़ प्रोग्राम के दायरा कार को तोसी दी जाएगी। तकरीब में सरफराज बुगटी ने खुशनसीब तालिबात में इलेक्ट्रिक बाइक की चाबियाँ तकसीम की और तालिबात से बातचीत भी की। बलूचिस्तान असम्बली ने PTI पर पाबंदी आयद करने की करारदाद मंजूर कर ली। मुश्तरका करारदाद रुकन असम्बली मीर सलीम खोसा ने ऐवान में पेश की। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से वक़ार अहमद। बलूचिस्तान असेंबली ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के हवाले से मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि 9 मई को मुल्क गिर फसाद पैदा करने वाली तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। PTI मुल्क में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये इंतशारी टोला फसादी और इंतशारी एजेंडे पर अमल पैरा है। वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि वो PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए ताकि PTI की वजह से मुल्क भर के अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी और तकालीफ का खात्मा मुमकिन हो सके। एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला की तरफ से फेडरेशन के खिलाफ महाजराई की बातें मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडा को आगे बढ़ाने की साजिश के मुतरादिफ हैं। KP हुकूमत का सरकारी मशीनरी और वसाइल के साथ विफाक पर जत्थों के साथ हमला किसी भी सियासी जमात के गैर सियासी एजेंडे का सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ करारदाद और इदारों को टारगेट करना भी काबिल मजम्मत है। बहादुर अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेज 25 करोड़ पाकिस्तानियों का फख्र हैं। बलूचिस्तान के आवाम का मुंतखब ईवान सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ा है। बलूचिस्तान असेंबली ईवान मुमलिकत पाकिस्तान में इंतशारी टोले की साजिशों की पुरजोर मजम्मत करता है। करारदाद आइन के आर्टिकल 144 और बलूचिस्तान असेंबली रूल्स 180 के तहत ईवान में पेश की गई। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। और मईशत के हवाले से अच्छी खबरों का तसलसल जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स 300 पॉइंट से जायद के इजाफे के बाद 1,339 पर ट्रेड कर रही है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 570 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया, जिसके बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,0653 पर पहुंच चुकी। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की मौसर इक्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत तमाम माशी आशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। वजारत ख़जाना ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की मईशत नए माली साल के इब्तदाई 4 माह में बहाली के सफ़र पर गामजन है और अहम अशारिये पेशरफ्त का इशारा दे रहे हैं। तफसीलात के लिए देखिए शाहरुख शफी की रिपोर्ट। वजारत खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत जारी माली साल के इब्तदाई 4 माह में बहाली के सफर पर गामजन है। वजारत खजाना की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई में कमी, तरसलात ज़र और IT बरामदात में इजाफा, मालियाती इस्तेहकाम और पॉलिसी रेट में कमी के बायस मईशत को सहारा मिला है, जिसके बायस ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और IT बरामदात में इजाफा हुआ है। पिछले दिनों जो हमारे इस्लामाबाद के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, इससे आपने देखा कि कितना स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन आया। जैसे ही ये मामला दुरुस्त हुए तो एकदम बूस्ट की स्टॉक मार्केट और जो है वो आज आप देखिए कि 1 लाख से ऊपर चली गई। मईशत है नज़र आ रहा है कि एक दुरुस्त सिमत की तरफ चल रही है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पहली दफ़ा 100,000 का बैरियर क्रॉस की है। जो खबरें आ रही थी पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, तो ये 17 माह में एक माइंड बॉगलिंग सिचुएशन है कि मार्केट जो है वो 66% बढ़ी है और ये पूरे मुल्क के लिए खुशी की बात है। रवां साल गंदम की काश्त के मौके पर खाद की तलब में नुमाया इजाफा देखने में आया है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में चैलेंजेस के बावजूद बेहतरी देखने में आई है। ऑटो इंडस्ट्री में गाड़ियों के पैदावार और फरोख्त में 21% से जायद का इजाफा देखा गया, जबकि सीमेंट की बरामदात में भी 30% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अब रियल स्टेट में पैसा आना भी स्टार्ट हो गया। जो रिपोर्ट्स हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से बिजनेस फैलेगा, फूलेगा। एक्सपोर्ट्स में IT को स्पेशली बड़ा फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो इन फ्यूचर हम समझते हैं कि ये डेफिनेटली इससे फर्क आएगा और आना चाहिए। इस पे अगर टैक्सेस के ऊपर स्पेशली उसको भी थोड़ा सा अगर ये रिव्यू करें, बिजनेस के लिए जो है ये फ्रूटफुल होगा। IT बरामदात 35% बढ़कर $1.2 अरब तक पहुँच चुकी है। जुलाई से अक्टूबर के दौरान कीमतों
में इजाफे की शरह 8.7% रही, जो गुज़श्ता साल 28.5% थी। रिपोर्ट के मुताबिक जारी खाता मुसलसल तीसरे माह भी सरप्लस रहा, जिसमें तरसीलाते ज़र और बरामदात के इजाफे ने अहम किरदार अदा किया, जबकि FBR की टैक्स वसूलियों में 25% इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट का तारीखी संगमील अबूर करना और सरमायाकार का हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार इस बात की कमाजी करता है कि मुल्क नई मुआशी बुलंदियों को छुएगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की 11 माह की कारकर्दगी मजमूई तौर पर बेहतरीन रही। 100 इंडेक्स ने 1 लाख की सतह उबूर की और इसे बरकरार भी रखा। स्टॉक मार्केट की मजमूई कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जहांगीर अली। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क के हर शोबे बिलखुसूस मईशत की तरक्की के लिए ठोस इकदाम इब्तदाई से किए गए, जबकि इन इकदाम के नतीजे में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी का एतमाद मुआशी तरक्की के समरात की शक्ल में मिलना शुरू हो गए। गुज़िश्ता महीनों के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 64% की शरह से बढ़ी है और IMF से कामयाब मुज़ाकरात के बाद रकूम के इजरा और ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा और शरह सूद में कमी हुई है। गवर्नमेंट की पॉजिटिव पॉलिसी डेवलपमेंट हुई हैं पिछले 3 से 4 महीने के अंदर और पिछले पूरे साल के अंदर, वो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ जो इन्फ्लेशन का हमारा नंबर आया है वो काफ़ी नीचे आना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से जो शरह सूद है वो भी नीचे आना शुरू हुई है। और जैसे जैसे वो नीचे आता शुरू हुई तो कॉन्फिडेंस जो है लोगों का, इन्वेस्टर्स का मार्केट में बढ़ता गया। स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो जून में हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट में सरमायाकार दोस्त पॉलिसी के बाईस 100 इंडेक्स 75,575 और यकम जुलाई को 78,824 की सतह पर पहुंचा। मजमूई तौर पर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इंडेक्स ने बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड किया। इन्वेस्टर्स बड़े ही पुरजोश नजर आ रहे हैं और बड़ी पुरुमीद नजर आ रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट मजीद तेजी में नजर आएगी। इंटरेस्ट रेट्स बेहतर हो गए हैं, डॉलर स्टेबल हो चुका है, इन्फ्लेशन में कमी आ चुकी है। ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इकॉनमी और स्टॉक मार्केट मजीद और तेजी में नजर आएगी। दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट का दर्जा हासिल करने वाली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तरक्की के नए मनाजिल तय कर रही है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम और सर्विसेज एक्सपोर्ट में इजाफा करने में SIFC का नुमायां किरदार है। 2024 की पहली सहमाही में सर्विसेज एक्सपोर्ट में 6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सर्विसेज एक्सपोर्ट रवा माली साल की पहली सहमाही में 6% इजाफे से $1.91 बिलियन रिकॉर्ड की गई। इस तरक्की की बुनियादी वजह IT के शोबे में खातिर का इजाफा है। सितंबर में सर्विसेज एक्सपोर्ट 17.4% इजाफे से तकरीबन $675 मिलियन रहीं। माहाना खिदमात की बरामदात 6.5% इजाफे के साथ 530 अरब रुपए रहीं। IT मसनूआत में सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप्स, डिजिटल मार्केटिंग और AI शामिल हैं। फ्रीलांसर्स के लिए बैंक अकाउंट्स की आसानी और रकम बरकरार रखने के लिए एक नया फ्रीलांसिंग फ्रेमवर्क मुतारिफ करवाया गया है। SIFC की काविशों से सर्विसेज एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए इस्लाहात जारी हैं। और पाकिस्तान और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका मश्क वॉरियर हश्तम का इनेकाद किया गया। इस मश्क का मकसद पेशा वराना महारतों को मुश्तरका तरबियत के जरिए बेहतर बनाने के साथ साथ दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। मश्क की इफ्ताही तकरीब 21 नवंबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक़िद की गई। इफ्ताही तकरीब में असलहे की नुमाइश, इनफरादी और टीम की सतह पर तरबियत तवज्जो का मरकज़ बनी रही। क्लियरेंस ऑपरेशन, गन फायर, ड्रोन ट्रेनिंग, स्नाइपर ट्रेनिंग और कंपनी की सतह पर तरबियत इस मश्क का हिस्सा है।
मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा जम्मू व कश्मीर में 30 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय फौज ने कठुआ, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ, उधमपुर और रियासी अजला के 50 से ज़ायद मकामात पर महासर तलाशी की कार्रवाइयाँ की हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान कठुआ से 10 और दीगर अजला से 20 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। छापों के दौरान कश्मीरियों के मोबाइल और लैपटॉप्स भी कब्जे में ले लिए गए। भारतीय रियासत मणिपुर में फसादात, कत्लो गारत और झड़पें रोजमर्रा का मामूल बन चुकी हैं। हाल ही में मणिपुर के 6 पुलिस स्टेशन जरबाम के इलाकों में फौजी एक्ट के तहत नया कानून नाफिज किया गया है। सन 1980 के बाद 2004 में फिर 2022 से 2023 के दौरान मणिपुर में मुख्तलिफ कानून नाफिज किए गए, जिसके तहत मणिपुर में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां बढ़ती गईं। मणिपुर में फसादात के दौरान 258 शहरी हलाक जबकि 50,000 से जायद बेघर हो चुके हैं। भारतीय फौज की तैनाती के बावजूद भी मणिपुर में खाना जंगी की सूरत हाल बरकरार है। मणिपुर में मोदी सरकार का जाबराना कानून सिर्फ अवाम की आवाज़ को कुचलने की कोशिश है। श्रीलंका में समुद्री तूफान सैलाब से 4 अफराद हलाक, 2.5 लाख से ज़्यादा बेघर। श्रीलंका डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के मुताबिक सख्त तूफान के नतीजे में 4 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं, जबकि 4 अफराद लापता हैं। श्रीलंका में सैलाब के नतीजे में हजारों घर ज़ेर-ए-आब आने के नतीजे में अब तक 2,50,000 से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। बेघर शहरियों को सरकारी इमारत में आर्जी पनाहगाहें फराहम की गई हैं। श्रीलंका की हुकूमत ने फौज को इमदादी कामों में हिस्सा लेने की हिदायत की है। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 27 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। इंडोनेशिया में मुसलसल तूफानी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी है। मुतादिद अफराद लापता हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया में बारिशों के बाद सैलाबी रेले से रास्ते में आने वाली हर शय बहा ले गए। मकामी हुक्काम का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद अफराद मिट्टी के तोदों तले दब गए हैं। सऊदी अरब में रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में सऊदी अरब के फरमानवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 6 ट्रैक्स पर मुश्तमिल मेट्रो प्रोजेक्ट के 3 ट्रैक्स 1 दिसंबर से अवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। इनकी मजमूई लंबाई 176 किलोमीटर है। तकरीब में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खादमीन हरमैनुल शरीफैन शाह सलमान का शुक्रिया भी अदा करते हुए कहा कि उनकी सरपरस्ती से ही ये मनसूबा हकीकत में तब्दील हुआ। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी ऐवान नुमाइंदगान ने मुल्क में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया की पाबंदी का बिल ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर किया, जो 13 के मुकाबले में 102 वोट से मंजूर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिल की सेनेट से मंजूरी के बाद हुक्काम को कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आने से रोकने के लिए 1 साल के अंदर सिक्योरिटी निज़ाम कायम करना होगा। पाबंदी पर अमल न करने की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 करोड़ 30 लाख डॉलर तक जुर्माना हो सकता है। एक बार फिर रुख करेंगे कौमी खबरों का। गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोयटा में अल्लामा इकबाल को खराजी अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान थे। तकरीब में तालिबात ने इकबाल की खुदी और इकबाल के शाहीन के उन्वान पर पुरजोश तकारीर की और कलाम इकबाल पर मबनी टैबलोस भी पेश किए। हाजरीन से खूब दाद समेटी। कोर कमांडर बलोचिस्तान ने तालिबात की हौसला अफजाई की और इनामात से नवाजा। तकरीब के अख्ताम पर कोर कमांडर्स ने तालिबात को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बलोचिस्तान का मुस्तकबिल हैं और तालीम के जरिए सूबे का नाम रोशन करके लोगों के मायूस कुन बातों की नफी करें। उनके अलावा सूबाई वजीर तालीम मोहतरमा राहिला हमीद दुरानी, सेक्रेटरी कॉलेजेस और हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन हाफिज मोहम्मद ताहिर और कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने शिरकत की। अरोड़ यूनिवर्सिटी सखर के तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने पनुआकिल गैरेजन का दौरा किया। वाइस चांसलर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाकर शहदा को खराज अकीदत पेश किया। GOC पनुआकिल गैरेजन ने तलबा से मुल्क को दरपेश दाखिली और खारजी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की और नौजवानों के अहम किरदार पर जोर दिया। तलबा ने सिक्योरिटी, माईशत, दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के असरात जैसे मौज़ूआत पर सवालात किए। तलबा ने सेशन को मालूमाती, तामीरी और हौसला अफजा करार दिया। तलबा ने दिफाई हथियारों और आलात का मुआयना किया और मुसल्लह अफवाज के खिदमात और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा।
کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری نے ایڈورڈز کالج پشاور کا دورہ کیا اور طلباء و اساتذہ سے خصوصی ملاقات کی۔ کور کمانڈر پشاور نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے تکنیکی تعلیم کے ساتھ ساتھ دور جدید کے تعلیمی تقاضوں کی اہمیت پر زور دیا اور سوشل میڈیا کے درست استعمال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے نقصانات سے طلباء کو آگاہ کیا۔ طلباء نے کور کمانڈر پشاور سے موجودہ حالات میں سیکیورٹی اور امن و امان کے قیام کے حوالے سے مختلف سوالات کیے۔ طلباء اور فیکلٹی ممبران نے کور کمانڈر پشاور کا ایڈورڈ کالج آنے پر شکریہ ادا کیا اور پاک فوج کی ملک کے لیے قربانیوں کو سراہا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مضافات میں اذان جمعہ کا وقت ہوا، چاہتا ہے سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم صل على سيدي حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ سيدنا محمد النبي ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، صوبائی دارالحکومت لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح برقرار ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق شہریوں کو بدستور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیا ہے ہم نے اپنے نمائندہ ازکا مقصود سے۔ جی ازکا مقصود، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، صوبائی دارالحکومت لاہور میں فضائی آلودگی برقرار ہے۔ آج صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 611 تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کا کہنا ہے
कि शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। ज़िला इंतज़ामिया इंसदाद स्मोक के लिए फील्ड में मुतहरिक है और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से क्रैकडाउन भी जारी है। और इसके अलावा स्मोक में कमी के पेश नज़र सूबे भर में पाबंदियों पर भी नरमी की जा चुकी है। रेस्टोरेंट्स में इनडोर आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक होगी, जबकि शॉपिंग मॉल्स मार्केट्स जो हैं वो रात 8 बजे तक बंद करने का फ़ैसला बरकरार है। स्मोक की वजह से शहरी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला है, जिनमें सांस, दमा और आशोब चश्म की बीमारियां शामिल हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी घरों से कम बाहर निकलें और घरों से बाहर निकलते हुए मास्क ज़रूर लगाएं, ख़ुसूसन बच्चों और बूढ़ों को स्मोक से बचाने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम करें। जी। बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज़ से मगरबी हवाएं दाखिल हो चुकी हैं, जबकि बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोयटा में मौजूद अपने नुमाइंदे अजीज़ मरी से। जी अजीज़ मरी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, सुबह बलूचिस्तान में गुज़श्ता शब से मगरबी हवाओं का जो सिस्टम है वो दाखिल हो चुका है। आज जो है कोयटा में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि बलूचिस्तान के जो शुमाली अजला हैं जिनमें ख़ासकर जो सरहदी इलाके हैं जिनमें जो है चमन, किला अब्दुल्ला, बरशोर, गुलिस्तान, तोबा काकड़ी, तोबा अचगई से मौसम सरमा की पहली बारिश जो है शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन मौसमियात का ये भी कहना है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के जो बेशतर अजला हैं वहाँ पे जो है तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान बताया जा रहा है, जिसमें खासकर कोयटा, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, बारखान, मस्तूम, कल्लात व दीगर इलाकों में जो है आज से जो है बारिश का इम्कान बताया जा रहा है, जबकि कहीं कहीं पहाड़ों पर जो है बर्फबारी का भी इम्कान है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो इसे जो है कोयटा का जो दर्जा हरारत है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कलात का जो दर्जा हरारत है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जहाँ पहुँचा है। सर्द हवाओं की वजह से शहरों ने गर्म मलबूसा जो है पहनना शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अजीज़ मरी, आप कोयटा से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, यहाँ वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ ही रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त, एक गलत कदम और गेम खत्म। कश्ती से गैर कानूनी सफर का खतरा मोल लेना अपनी जिंदगी और पैसा जाया करना है। ऑस्ट्रेलिया वीजे के बगैर आने वालों को कोई वीजा नहीं देता है। आपको रोक दिया जाएगा, लुटा दिया जाएगा और आपको कभी ऑस्ट्रेलिया में आबाद नहीं होने देंगे। कोई दूसरी बारी नहीं। इंसानी स्मगलरों के हाथों कैच होकर आउट ना हो जाएं। कानूनी रास्ता ही वाहिद रास्ता है। गैर कानूनी मुंतकली का सिफर इम्कान।